Good morning, dear student. My name is MP Meshram, Assistant Professor, Department of Zoology. So, in the previous lecture, we have discussed about the law of independent assortment, the experimental part and the observation of the experiment conducted by the Mendel, especially the inheritance pattern of two genes at the same time. So in the monohybridization experiment, Mendel observed the inheritance pattern of the single gene from one generation to next generation. In the dihybridization experiment, Mendel decided to observe the two gene or the characters of two genes from one generation to the next generation at the same time. So in the dihybridization experiment, he conducted the experiment by selecting the parent having the genotype capital R and capital Y. It means he selected two parents having the phenotype round and yellow seed and the other parent wrinkled and green seeds. So in the F1 generation, he observed the same result as he observed the results in the monohybridization experiment. So what he observed in F1 generation, in case of the dihybridization experiment, he observed the round and yellow seed plants in F1 generation. It means what? The dominant characters similarly or in the same pattern expressed in the F1 generation in case of dihybridization experiment also. But in case of F2 generation, he observed two different phenotypes than the parental phenotypes. So in F2 generation, he observed two different novel phenotypes apart from the parental phenotypes. The parental phenotypes were the round and yellow seeded plants and the wrinkled and green seeded plants. Whereas the two different phenotypes are the round and green plants and the wrinkled and yellow plants. So he observed four phenotypes in F2 generation having two parental and the two novel genotypes. So in today's class we will discuss the interpretation of law of independent assortment. What is the basis behind the this result obtained in the F2 generation? ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब क्रॉस किया गया किसके बीच में, राउंड येलो प्लांट्स के बीच में और wrinkled ग्रीन प्लांट्स के बीच में, जो कि हमारी P1 जनरेशन है इसकी, इस डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की. इस डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की P1 जनरेशन है. सो ये जो है प्योर प्लांट्स है जिसको हम कहेंगे होमोजाइगस पेरेंट्स, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r. So when there is a cross between these two parents, so what he observed in F1 generation, he observed the round and yellow seeded plants, which is called as the dihybrid progeny. जिसको और हम क्या कह सकते हैं, तो ये हमारी डायहाइब्रिड प्रोजेनी है. ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है F1 जनरेशन का वो एग्जैक्टली सिमिलर था किसके जैसे कि मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में. तो मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा है कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं. सिमिलर वे डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में भी जो हमने दो अलग अलग जीन्स को सिलेक्ट किया है, तो उसमें से हर एक जीन्स का जो डोमिनेंट ट्रेट है वही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है किसमें, F1 जनरेशन में. लेकिन जब F2 जनरेशन का ऑब्जर्वेशन किया है, तो F2 जनरेशन के लिए हमने क्या किया है, ये जो F1 प्रोजेनी मिली है हमको, उसका हमने क्या किया है, सेल्फिंग.
उसका हमने क्या किया है, सेल्फिंग किया है। हमने F1 जनरेशन के ही प्रोजेनी को यूज किया है इसके लिए F2 जनरेशन में आने के लिए। अब ये हमारे है P2 जनरेशन, ये हमारी सेकेंड पैरेंटल जनरेशन है। तो इसमें रिजल्ट क्या मिला, इसमें चार अलग अलग चार प्रोजेनी मिली। पहली प्रोजेनी थी जिनका फिनोटाइप था राउंड येलो। दूसरी जो प्रोजेनी थी उसका फिनोटाइप था राउंड ग्रीन। थर्ड जो प्रोजेनी थी उसका फिनोटाइप था wrinkled yellow, and the fourth progeny having the phenotype wrinkled green। तो ये ऐसे दो डिफरेंट फिनोटाइप्स कैसे आए, राउंड ग्रीन और येलो रिंकल्ड। हमारे पेरेंट के जो फिनोटाइप्स थे दो ही थे, एक पेरेंट का फिनोटाइप था राउंड और येलो, और दूसरे पेरेंट का जो फिनोटाइप था वो था राउंड और रिंकल्ड और ग्रीन। लेकिन जब F2 जनरेशन में हमने देखा है कि हमको दो नए कॉम्बिनेशंस मिले फिनोटाइप के। कौन से, एक मिला हमको राउंड ग्रीन और दूसरा मिला रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो ये ऐसे नए फिनोटाइप्स कैसे है, तो उसके पीछे हम देखेंगे उसके पीछे क्या बेसिस है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो इसी बेसिस को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसको ही क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी क्या होता है कि जब हम दो कैरेक्टर के बीच में जब हम क्रॉस करते हैं, किसी भी प्रोजेनी को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं दो जीन का एट द सेम टाइम, और जब हम दो एलीलिक पेयर्स लेते हैं, ठीक है, दो एलीलिक पेयर्स लेते हैं, तो हर एक एलीलिक पेयर का जो सेग्रीगेशन होता है गैमेट फॉर्मेशन में वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे एलीलिक पेयर के साथ में। ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन two parents differing in the two pair of contrasting characters, so alleles of one pair segregates independently from the alleles of another pair। ठीक है, so this is the basis of law of independent assortment, and this is why we get four different phenotypes and the two novel phenotypes other than the parental phenotypes। so हम देखेंगे कि क्रॉस एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ये हमारे पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स का जीनोटाइप है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में होता है गैमेट फॉर्मेशन। इस पेरेंट की जो है ये नहीं, ठीक है, इस पेरेंट के जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस पेरेंट के जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये है गैमेट्स। जब इनका पॉलिनेशन होगा या ये जब गैमेट्स फ्यूज होंगे तो एक प्रोजेनी बनेगी जिसका जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये है हमारी F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप, और ये जीनोटाइप जो है इसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड। तो क्या कहेंगे हम, ये डायहाइब्रिड प्रोजेनी मिली हमको जिसका जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कंबाइन होंगे, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कंबाइन होंगे। ठीक है, तो ये एक एलीलिक पेयर है, ये एक एलीलिक पेयर है, और दूसरा एलीलिक पेयर कौन सा है, ये है। तो इसका जो फिनोटाइप रहेगा, तो कैपिटल आर क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है राउंडेड सी, और कैपिटल वाई क्या एक्सप्रेस करेगा,
तो F1 जनरेशन में ये प्रोजेनी मिलेगी कैपिटल आर, जिसका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और उनका जो फेनोटाइप रहेगा वो सभी जो प्लांट्स रहेंगे या सभी जो प्रोजेनी रहेगी, जिसको हम डायहाइब्रिड प्रोजेनी भी कहेंगे, तो ये सभी जो डायहाइब्रिड प्रोजेनी रहेगी वो कैसी रहेगी, राउंडेड और येलो सीडेड प्लांट्स रहेंगे, ठीक है। F2 जनरेशन के लिए हमको क्या लेना है, यही F1 जो प्रोजेनी है इसको पेरेंट कंसीडर करना है। अभी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको हम क्रॉस करेंगे। ये हमारी P2 जनरेशन रहेगी, ठीक है। P2 जनरेशन में ये जो हमने जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए, ये पेरेंट कहां से सिलेक्ट किए, हमने F1 जनरेशन से सिलेक्ट किए हैं। ये पेरेंट्स हमने कहां से इंपोर्ट किए हैं, F1 जनरेशन से इंपोर्ट किए हैं। हमने उसी के साथ में क्रॉस किया है, इसलिए इस क्रॉस को हम कहेंगे सेल्फिंग, उसको कहेंगे हम सेल्फिंग। जब ये जो हम पेरेंट्स सिलेक्ट करेंगे तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसके 4 गैमेट्स बनते हैं। पहला गैमेट क्या रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा जो गैमेट रहेगा वो कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा जो गैमेट रहेगा वो रहेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथा जो रहेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। दूसरा जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप भी सेम है, इसलिए सेम टाइप के जो है वो गैमेट्स मिलेंगे। पहला रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे गैमेट्स हैं। किसके गैमेट्स हैं, P2 जनरेशन के गैमेट्स हैं, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल होगा, तो इसके कॉम्बिनेशन के लिए हम मेथड यूज करेंगे पुनेट स्क्वायर मेथड। तो F2 प्रोजेनी के क्या कॉम्बिनेशंस रहे, इसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, हम पुनेट स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं या फिर बायफोर्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर मेथड हम पहले देखेंगे। पुनेट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो दो पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट के जो गैमेट्स है वो हॉरिजॉन्टल अपवर्ड टॉप पे लिखते हैं और दूसरे पेरेंट के गैमेट्स जो है वो साइड में लिखते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास दो पेरेंट्स थे, ठीक है। तो एक पेरेंट्स के गैमेट्स हम टॉप पे लिखेंगे और दूसरे पेरेंट के गैमेट जो है वो इस साइड में लिखेंगे। तो गैमेट्स तो सेम ही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और लास्ट में है स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरे पेरेंट्स के भी गैमेट्स हम लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई,
capital R, small r, capital Y, and the last one is small r, small y. ठीक है. अब इस गैमेट्स का कॉम्बिनेशंस बनाना है. कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? तो इस स्क्वायर में जो रहेगा वो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा. तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y. ठीक है. अब इस स्क्वायर में क्या बनेगा? इस स्क्वायर में गैमेट कौन सा है? कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल Y. तो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. फिर पहले कैपिटल लेना है. कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y. कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. इसमें तो कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. ठीक है. उसके बाद में कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y. कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y. कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y. स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. लास्ट रो में कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y. कैपिटल स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. लास्ट में स्मॉल r. अब इसके फिनोटाइप्स क्या रहेंगे? तो हर एक ये जो जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस मिला है वो प्रोजेनी का. तो टोटल कितनी प्रोजेनी फॉर्म है? 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो प्रोबेबली टोटल 16 प्रोजेनी का कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुआ है F2 जनरेशन के लिए. तो ये सभी उनका जीनोटाइप है. ठीक है. अब इसका फिनोटाइप्स अगर हम देखेंगे तो जीनोटाइप में हमको देखना है कि डोमिनेंट एलील किसका है. ठीक है. तो इसमें कैपिटल R डोमिनेंट है और कैपिटल Y भी है. तो कैपिटल R क्या करेगा? राउंड और कैपिटल Y येलो. यहाँ पे भी कैपिटल R है मतलब राउंड रहेगा और यहाँ पे भी कैपिटल Y है इसका मतलब क्या रहेगा? राउंड येलो. ये भी रहेगा राउंड येलो. इसमें भी कैपिटल R है और कैपिटल Y है इसका मतलब क्या रहेगा? राउंड येलो. इसमें भी कैपिटल R है और कैपिटल Y है. ये भी प्रोजेनी का जो फिनोटाइप रहेगा वो क्या रहेगा? राउंड येलो. ये जो प्रोजेनी रहेगी इसमें भी कैपिटल R है और कैपिटल Y है. इसका मतलब क्या है? इसका भी फिनोटाइप क्या रहेगा? राउंड और येलो ही रहेगा. इसमें भी कैपिटल R है लेकिन कैपिटल Y नहीं है, स्मॉल y है. तो एक कैरेक्टर का सिर्फ यहाँ पे राउंड तो रहेगा लेकिन येलो नहीं रहेगा क्योंकि कैपिटल Y नहीं है. यहाँ पे क्या है? डबल स्मॉल y है. तो ये क्या रहेगा? राउंड और ग्रीन. यहाँ पे कैपिटल R भी है, कैपिटल Y भी है. इसका मतलब क्या रहेगा? राउंड और येलो.
यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, तो सेम फिनोटाइप रहेगा राउंड, और स्मॉल वाई का फिनोटाइप जो रहेगा वो रहेगा ग्रीन कलर से। इसके बाद में कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, इसका मतलब इसका सेम रहेगा राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेड ही रहेंगे। यहाँ पे भी राउंड और येलो ही रहेगा। यहाँ पे स्मॉलर है, इसका मतलब क्या रहेगा, ये प्रोजेनी का फिनोटाइप जो रहेगा वो एक ट्रेड जो रहेगा रिंकल रहेगा, और दूसरे इसमें कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या रहेगा रिंकल येलो। इस प्रोजेनी में जो पहला जो एलिलिक पेयर है वो दोनों होमोजाइगस स्मॉलर है, इसका मतलब क्या रहेगा रिंकल रहेगा, लेकिन दूसरे इसमें कैपिटल वाई है तो रिंकल येलो। लास्ट इसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, इसका मतलब क्या रहेगा राउंड येलो। इसमें कैपिटल आर है, इसका मतलब राउंड रहेगा लेकिन कैपिटल वाई नहीं है तो ये रहेगा ग्रीन। इसमें स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा प्रोजेनी का फिनोटाइप रिंकल से रिंकल, लेकिन कैपिटल वाई है तो क्या रहेगा रिंकल येलो, और यहाँ पे रिंकल ग्रीन। तो ये 16 प्रोजेनी में से टोटल प्रोजेनी F2 की कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल हुई कितनी प्रोजेनी की 16 प्रोजेनी, और इसमें हमको फिनोटाइप्स कितने मिले 4 फिनोटाइप्स मिले। पहला जो फिनोटाइप है वो है राउंड और येलो, दूसरा जो है वो है राउंड ग्रीन, तीसरा जो है वो है रिंकल येलो, और चौथा जो है वो है रिंकल ग्रीन। चौथा कौन सा है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो हमको काउंट करना है कि प्रोपोर्शन कितना है, रेशियो हमको निकालना है। तो राउंड और येलो कितने देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो राउंड येलो कितने हैं 16 में से 9 प्रोजेनी का जो फिनोटाइप है वो क्या है राउंड और येलो है। उसके बाद में है राउंड और ग्रीन। पहले रो में तो कोई राउंड और ग्रीन नहीं है, दूसरे रो में राउंड और ग्रीन ये एक हुआ 1, दूसरा ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हुआ 16 में से 3 प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा है राउंड ग्रीन है। अब बचा कौन सा है रिंकल्ड। तो रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो एक ही प्रोजेनी है, तो ये हम लिख लेंगे 1 आउट ऑफ 16 का जो फिनोटाइप है वो क्या है रिंकल्ड ग्रीन है। अब बचे कितने 16 में से 9 और फिर 12 और 13, तो बाकी के जो है वो है। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है F2 जनरेशन का वो है 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। तो 9 जो है वो प्योर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट्स है राउंड और येलो, और वो जो 1 है वो है होमोजाइगस पूरे जो हम कहेंगे रेसेसिव ट्रेट का कॉम्बिनेशन है रिंकल और ग्रीन। 3 जो प्रोजेनी रहेंगी वो रहेंगी राउंड ग्रीन, और दूसरी जो 3 प्रोजेनी रहेंगी वो रहेंगी रिंकल ग्रीन सॉरी रिंकल और येलो। तो ये F2 का फिनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी मेथड हम देखेंगे, अगर जीनोटाइप भी काउंट करना है तो जीनोटाइप भी काउंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन जीनोटाइपिक जो कॉम्बिनेशन आएगा,
जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन जो है या फिर बायफोर्क मेथड जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बायफोर्क मेथड से हमको फिनोटाइप कैसे पता करने हैं या फिर क्या रेशियो है और जीनोटाइप का क्या रेशियो है वो आसानी से हम पता कर सकते हैं कौन से मेथड से, बायफोर्क मेथड से। थैंक यू।